Good morning, student. Now this is the last video of this lesson, circle. So by using this video, we finish our lesson. So here two questions we completed. Beautiful. We take two questions here. In this question, this is the important question and lengthy, so that I will use here the two part of this board. So here, students, a triangle ABC is drawn circumscribing a circle. सर्कल के बाहर में क्या बना है? ट्रायंगल बना है. circumscribing a circle. सर्कल को बाहर से ट्रायंगल है. रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर. So this radius is considered as O is the center of the circle. So this is of your radius. This is again one of the radius and this is of your third radius. Got it? So here, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. ये जो point of contact है, ये point of contact की वजह से BC के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए. एक हो गया BD और दूसरा हो गया C. लेंथ आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो ये वाला लेंथ दिया 8 सेंटीमीटर और ये दिया आपका 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द साइड AB एंड AC. मींस आपको फाइंड आउट करना है AB का वैल्यू और साथ में AC का वैल्यू. ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमने क्या किया? ये टेंजेंट दिख रही है, ये भी टेंजेंट दिख रही है और ये भी टेंजेंट दिख रही है. ओके, सो एज AB, BC एंड AC are tangent to the circle at point. कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? पहली कौन सी AB लिया तो AB is the tangent at point F. दूसरी BC लिया तो BC is the tangent at point D and तीसरी है आपके पास में E respectively. अब टेंजेंट है और आपने यहां से क्या निकाला? रेडियस. So tangent is perpendicular to radius, therefore BC is perpendicular to OD, AB is perpendicular to OF, and the third one is AC is perpendicular to OE. Okay? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tangent, radius, perpendicular theorem. Tangent, radius, perpendicular theorem. क्या है tangent, radius, perpendicular theorem? The length of the tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Point of contact के पास में जो radius बनती है, वो radius को tangent कैसे रहेंगी? Perpendicular रहेंगी. कैसे रहेंगी tangent? Perpendicular. Therefore यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहाँ पर सेकंड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है और थर्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है. Now we join करेंगे हम लोग. किस किस को join करेंगे? AO को join करेंगे. बराबर. AO को ज्वाइन किया हमने, उसके बाद में OC को ज्वाइन किया हमने और वी कैन से दैट ड्रॉ OA, OB एंड OC. तीनों ड्रॉ कर लिए हमने. दिख रहा है आपको? अब ये है टेंजेंट. सो दीज आर द एक्सटर्नल पॉइंट. ABC आर द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल and tangent drawn from the external point to the circles are equal. So here we consider that which one? Let AE is equals to AF is equals to X. ये ले लिया मैंने. यानी AE का वैल्यू और AF का वैल्यू ये दोनों मैंने क्या कंसीडर किया? X कंसीडर किया. ओके. दूसरा दिख रहा है C के पास में से निकला हुआ tangent, that is CD is equals to CE is equals to 6. ये दिया है already सेंटीमीटर. This is also centimeter. And the third one is BD is equals to BF is equals to 8 centimeter. BD is equals to BF is equals to 8 centimeter. यहाँ पे लिखेंगे tangent from external point. So tangent from the external point to the circles are equal. So length of the tangent drawn from the external point means which one? AE is equals to AF and the length is X. Second,
B से निकाली गई tangent BF is equals to BD, ये दो tangent इक्वल हो गया। वैसे ही C से निकाली गई CD and CE, these are the two tangent segments are equal. Now as this is 8, this is also x, this is 8, this is also 8 centimeter, and as CD is equals to 6 centimeter है, इसका मतलब CE भी आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। इतना समझ गए? अब आपको पता है AC जो दिया है, AC के अपने पास में दो पार्ट है, एक है आपका AE और दूसरा है आपका EC, because AEC are collinear points, therefore AC है आपके पास में पता नहीं, AC का वैल्यू नहीं है, AE का वैल्यू है आपके पास में x और EC का वैल्यू है 6, तो AC is equals to 6 plus x। इतना समझ गए? आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हम लोग AB निकाल लेंगे। सो AB के भी यहाँ पे दो पार्ट हो गए, पहला हो गया AF प्लस FB and AF is equals to what? X and FB is equals to 8, so AB is equals to x plus 8, ये आ गया दूसरा। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे AFB are collinear point। जैसे हमने AC निकाला, जैसे हमने AB निकाला, वैसे ही हम लोग CB निकाल लेंगे यहाँ पे। तो CB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, CB is equals to CD plus DB, because CDB are collinear point, तो इसका मीनिंग होता है collinear point होता है। ओके, नाउ CD है आपके पास में 6 और ये है आपके पास 8, तो ये बन गया आपका 14 सेंटीमीटर। CD is equals to 14 सेंटीमीटर। तीनों सेगमेंट आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों साइड आपके पास में AC का भी वैल्यू है, AB का भी वैल्यू है और BC का भी वैल्यू है। जब अपने पास में तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड होते हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं हेरॉन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला व्हाट वी फाइंड हियर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो ये जो सेमी पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर का है हाफ। पेरीमीटर को हाफ करेंगे तो सेमी, सर्कल को हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल। ओके, तो वैसे ही सेमी पेरीमीटर मींस क्या हो गया, पूरे सरकमफेरेंस का जो रहेगा, सर्कल का जो रहेगा, उसका जो पेरीमीटर रहेगा उसका हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला है आपके पास में a plus b plus c upon 2, 9th में पढ़ा होगा शायद आपने, ये 9th में पढ़ा हुआ है, a plus b plus c upon 2 is equals to, a का मतलब हो गया आपका AC, तो ले लो AC कोई भी, so that is x plus 6, b का मतलब हो गया आपका BC का वैल्यू, that is 14, और C का मतलब हो गया AB का वैल्यू, that is x plus 8 इसे अपॉन क्या 2, x plus x बन गया आपका 2x प्लस 6 plus 8 14, 14 plus 14 28, that is upon 2, so what we will get here, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पे x plus 14 upon 2, this 2 will be cancelled, therefore the value of s is equals to x plus 14, ये आ गया वैल्यू x का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। ओके, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। सो बाय हेरॉन्स फार्मूला बड़ा है, यानी हेरॉन मैथमेटिशियन है तो उसका कैपिटल होना चाहिए। हेरॉन्स फार्मूला, तो क्या है फार्मूले के हिसाब से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a s minus b into s minus c. Okay, so this is the formula for area of triangle, so that is square root of s का मतलब x plus 14, दूसरा s minus a means x plus 14 minus a का मतलब मैंने कंसीडर किया AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू क्या है, x plus 6 है, तो माइनस के कारण क्या हो गया, minus x minus 6, got it। दूसरा BC का वैल्यू है आपका 16, सॉरी कितना 14, तो आ गया x plus 14 minus 14, ये BC का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। और तीसरा जो वैल्यू है वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ में x plus 14 minus x minus 8। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, s minus a, s minus b and s minus c, this is of c, और ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने के कारण हमने डायरेक्टली
a का वैल्यू जो लिखा है वो x माइनस 6 लिखा, मगर एक्चुअली a का वैल्यू क्या था, x प्लस 6 था, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस it become minus and this also become minus. So similarly all these things are there is equals to square root of x plus 14 as it is. Got it? यहां पर x कैंसिल, यहां पे बचा आपका 8, 14 माइनस 6 8, 14 कैंसिल, यहां पे बचा x, और यहां पे x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 हो गया आपका 6. So that is of equals to into 6. तो ये है आपका x. Got it? This is of equation number 1. Or we can consider this is the area of the triangle ABC. What is this? This is the area of triangle ABC, and the area of triangle ABC is equals to square root of x plus 14 into 8 into x into 6. Now what we do here, this whole triangle is divided into 3 triangles. The first one is triangle AOB. देख रहे हैं आप? अब ट्रायंगल AOB में यदि मैं ये बेस कंसीडर कर रहा हूं AB, तो ये हो जाएगा उसका हाइट. ओके, मींस बेस मैंने AB लिया तो OF इज द हाइट हो गया. यदि मैंने बेस BC लिया तो OD इज द हाइट हो गया, और मैंने AC बेस कंसीडर किया तो OE इज द हाइट. Therefore, triangle ABC is equals to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle कौन सा है, AOC. मींस AOB मींस ये एरिया, BOC मींस ये एरिया, AOC मींस ये एरिया. तीनों एरिया को ऐड करेंगे तो पूरे एरिया का ट्रायंगल मिलेगा. यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम लोग. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फॉर्मूला यहाँ पे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ हो गया, इसका बेस कंसीडर किया x प्लस 8, x प्लस चाहिए सॉरी प्लस 8 इंटू हाइट. हाइट मींस कितना, रेडियस, और यहां पे रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस. बेस BOC का बेस कौन सा है, 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस. बेस कौन सा इसका AC, दैट इज x प्लस 6 इंटू क्या बोलेंगे 4. Got it? 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4. तो यहां पे वैल्यू मिल गया आपको 2 into. Got it? मल्टीप्लाई कर लेते सीधा सीधा, पहले तकलीफ नहीं रहेगी अपने पास. इसका मल्टीप्लिकेशन अलग, इसका अलग और इसका अलग. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 into x 2x प्लस 16 प्लस 14 into 2 28 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6 2 जा 12. यहां पे आ गया 2x प्लस 2x कितना 4x हो गया, प्लस अब यहां पे चेक करो ये कितना है आपका 24, ये कितना 16 प्लस 12 कितना 28. सो 24 प्लस 28 बराबर ना, चेक कर लेंगे एक बार और. 2x प्लस 16 2 14 जा 24, नहीं ये गलत हुआ, 14 2 जा 28 चाहिए हमको, सॉरी 14 2 जा 28. 2 into x 2x and 2 6 जा 12. यहां पे थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आराम से करना है आपको. यहां पर 2x प्लस 2x हो गया आपका 4x, ये 28 हो गया, और यहां पे चेक करेंगे हम लोग तो 16 प्लस 12 दैट इज अगेन 28 बराबर ना. 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 1 2, सो 28 हो गया. 28 प्लस 28 56, ये आ गया आपका 56. क्या कॉमन आ सकता है यहां पे, यस कॉमन क्या आएगा 4, तो बचा क्या x प्लस 14, बिकॉज 4 1 जा 4, सॉरी 4 4 जा 16 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपने पहले ही निकाल के रखा है, क्या है आपके पास एरिया, x प्लस 14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. यहां पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर रूट वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, आ गया आपका x प्लस 14
into 8 into x into 6 is equals to, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको 4 का स्क्वायर 16 और यहां पे आएगा आपका x प्लस 14 और उसका स्क्वायर। इतना समझ गया। अब यहां पे भी x प्लस 14 है और यहां का भी एक x प्लस 14 कैंसिल हो गया, क्योंकि x प्लस 14 के दो है यहां पे, x प्लस 14 इंटू x प्लस 14, तो उसमें से x प्लस 14 एक कैंसिल हो गया डिवाइड करके, तो बचा आपके पास में x प्लस 14। गॉट इट। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, पहले यहां पे ये इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और इजी हो गया हमारे लिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी एक कैंसिल हो गया आपका, यानी इजी भी काम हो रहा है। यहां पे आ गया 3x आपके पास और यहां पे आ गया आपका x प्लस 14। गॉट इट। x को ट्रांसफर करेंगे तो 3x minus x is equals to 14, so 2x is equals to 14, so x is equals to what, 7। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 7। अब ये जो x का वैल्यू 7 है, तो ये 7 का वैल्यू हम कहां पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेक करो, हमारे पास में ac का वैल्यू है, therefore the value of ac is equals to x plus 6, x plus 6, that is x means क्या, 7 plus 6, 7 plus 6 that is of equals to 13 सेंटीमीटर। और दूसरा है अपने पास में AB का वैल्यू, जो कि हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, that is of equals to 13 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू जो है हमारे पास x plus 8, so x plus 8 it means 7 plus 8 that is of equals to 15 centimeter. So in this way you can solve the example. This is not a tough example, but this is the lengthy example. ये example कैसा है बेटा, lengthy है, okay? तो यहाँ पे ये example lengthy है मगर difficult नहीं है। Now the next example, ये lesson का एकदम last वाला example है। Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle means opposite side, quadrilateral के opposite side, कौन से opposite side हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। कौन से opposite side है, PQ और SR। So PQ and SR are the opposite side of the quadrilateral, subtend the supplementary angle at the center, means center के पास में supplementary angle बना रहे हैं। तो PQ का अपोजिट साइड क्या हो गया, RS हो गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है भाई, हमें प्रूफ करना है एंगल POQ, यानी ये वाला एंगल किसने बनाया, PQ ने, और PQ का अपोजिट साइड RS, तो RS ने बनाया ROS। तो एंगल क्या प्रूफ करना है, एंगल POQ प्लस एंगल ROS is equals to 180। वैसे ही हमको प्रूफ करना है कौन सा एंगल, POS प्लस एंगल ROQ is equals to 180। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, सी प्रूफ के लिए। सी नाउ हियर वी कैन कंसीडर एनी ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं यहां पे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं उनको चेक करना आपने, ओके। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल PAO, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री है। एंगल PAO एंड ट्राइंगल PAO DPDO, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, गॉट इट। अब ये दो ट्राइंगल लिया मैंने, ये दोनों ट्राइंगल में PA इज इक्वल्स टू PD, यहां पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। सो हियर PA इज इक्वल्स टू PD, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। उसके बाद में OA इज इक्वल्स टू OD, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, got it? And the third one is PO is congruous to PO, PO is equals to PO, it is a common side, therefore triangle PAO congruous to triangle PDO by SSSS,
आप बोलेंगे क्या सर यहाँ पे SAS नहीं लगता क्या? लगता है, बराबर है, लगेगा। RHS नहीं लगेगा क्या? यस लगेगा। यानी यहाँ पे कोई भी हम लोग टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी, यानी तीनों टेस्ट में से कौन सा SSS, RHS, SAS, ओके। कोई भी टेस्ट अप्लाई करो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद में एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल POA, नॉट PAO, POA इज इक्वल्स टू एंगल POD इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे यहाँ पे X। ले लिया हमने, तो ये बन गया आपका X, ये बन गया आपका X। इतना समझ गए इक्वेशन 1, और यहां पे लिखता हूं मैं CP CT। सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग? दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये वाला ट्रायंगल, एंगल कौन से रे बाबा? एंगल QOA इज इक्वल्स टू QOB इज इक्वल्स टू Y, ये दिया YY। उसके बाद में एंगल ROB इज इक्वल्स टू ROC इज इक्वल्स टू Z, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया आपका Z। और यहां पे देंगे हम लोग T, टर्बूज का T, ओके। तो यहां पे कौन सा एंगल लिया हमने? एंगल SOC इज इक्वल्स टू एंगल SOD इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? T, इक्वेशन नंबर 4। Now you know that sum of the angles at the point is equals to 360 degree. Means x plus y plus y plus z plus z plus t is equals to 360 degree. Angles at a point, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं सभी का एडिशन होता है यहाँ पे 360 डिग्री। सो x plus x बन गया आपका 2x plus 2y plus 2z plus 2t is equals to 360, that is x plus y plus z plus t is equals to 180 degree। अब x plus y means जो एंगल है वो एंगल कौन सा है? POQ है। x plus y means कौन सा एंगल है? POQ है। और z plus t का मतलब कौन सा एंगल है? ROS। एंगल ROS is equals to 180, ये हो गया आपका एक इक्वेशन, यानी ये हो गया सॉल्व आपका एक। गॉट इट? दूसरा x प्लस t, यानी ये वाला एंगल, ये x लो और ये t लो, ये दोनों का एडिशन लेके क्या बनता है? x प्लस t का POS, कौन सा बना? एंगल POS प्लस एंगल कौन सा है? z प्लस y बचा है, z प्लस y क्या है? QOR, that is ROQ is equals to 180, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। So in this way we prove here opposite side of the quadrilateral some circumscribing the circle subtend the supplementary angle at the center. So in this way we complete our lesson. You have to complete this lesson in your fair notebook, okay?